So let's look into our lecture number 6, dual nature of radiation and matter. So in the last lecture we have concluded the dual nature of matter. ठीक है, तो de Broglie has given this theoretical concept के taking the hint from के dual nature of radiation जब हमारा prove हो गया था, तो why can't there is a possibility कि matter के कभी dual nature हो. It can also show the, because अभी तक classical way में हम लोग सोचते हुए आ रहे थे कि matter is a particle, but same way हमने light के लिए भी सोचा था. Light has been proved as a wave, but later on some certain observation came which prove light as a particle also. So that revolutionary idea came to his mind कि matter can also behave like a wave. ठीक है, so that theoretical concept came and he gave the de Broglie equation where he linked the particle nature and the wave nature into the de Broglie equation. ठीक है, so that was a de Broglie equation where he linked the particle and the wave nature, and that revolutionary idea just kicked into his mind considering the symmetry in the universe. ठीक है, so he has just given the theoretical concept कि dual nature of matter भी हो सकता है. ठीक है, the matter can also show the particle and the wave nature also, but that was just the theoretical concept. Later on that theoretical concept has been proved experimentally by the Davison and Germer, that we have seen the Davison and Germer experiment where he has proved the wave nature of the matter. ठीक है, wave nature of matter he has shown the interference in the fired electrons through the concept of reflection हमने देखा था from the nickel crystal. ठीक है, and he has used two ways to get the value of lambda. One is to use the de Broglie wavelength. ठीक है, lambda यहाँ से निकाला था, and then he has used the Bragg's law which has been used in the interference pattern. ठीक है, to find out the constructive interference using the Bragg's law. ठीक है, तो from there they have find out कि हमारा जो lambda comes out to be from here and the lambda comes out from the Bragg's law is almost similar, so that further prove our dual nature. ठीक है, same way further G.P. Thompson has also done the experiment and proved the अपना wave nature of our matter. ठीक है, तो हमारा फाइनली कंक्लूड हो गया कि अपना मैटर का भी dual nature है. ठीक है, so now we will further in today's lecture we are going to discuss this the properties of matter as a wave. ठीक है, matter waves की properties discuss करेंगे हम लोग. Matter waves is nothing called, it is also called the de Broglie waves. ठीक है, तो we are going to discuss the property of matter waves where we are going to focus more on the wave particle duality. ठीक है, कि matter is either a wave or a particle, but it depends upon how you are going to measure it. ठीक है, depends upon that. और जो major concept that we are going to discuss is the delocalization. अभी तक हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में क्या करते थे, पार्टिकल को पॉइंट की तरह ट्रीट करते थे और वेव को एज ए स्प्रेड आउट थिंग्स ट्रीट करते थे. ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जब हमारा मैटर हो गया तो इट इज़ लाइक यू कैन नॉट ट्रीट इट एज अ पार्टिकल नाउ. सो हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट द मैटर वेव नाउ, वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज अ प्रोबेबिलिटी क्लाउड. ठीक है, दैट मीन्स यू कैन ओनली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्पेसिफिक लोकेशन. ठीक है, कि आप एक पर्टिकुलर आप उसका एक डिटर्मिनिस्टिक लोकेशन नहीं बता पाओगे, बट यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओनली, यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. एंड दिस इज व्हाट वी हैव कंक्लूडेड विद द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कंक्लूड करेंगे कि फाइंडिंग द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है, दैट इज़ व्हाट द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, सो आउटकम ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन इज द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन. सो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वेव डिस्कस करेंगे वेयर वी आर गोइंग टू सी द पार्टिकल, एक ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा दैट वी आर गोइंग टू सी इट हेयर. ठीक है, और फिर जो हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारा मैटर वेव का, दैट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मैटर वेव और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बिकॉज मैटर वेव्स क्या होती हैं, दैट यू कैन हैव द शॉर्टर वेव लेंथ. हमारी जो किसी भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ को देखने के लिए, जो लो से लो छोटी से छोटी चीज़ को देखने के लिए जो प्रॉब्लम होती थी हमारी रेजोल्यूशन की, दैट इज़ अ लैम्डा, कि अगर जितना छोटा लैम्डा होगा उतना हाई रेजोल्यूशन का आप देख सकते हो. तो यहाँ पे हमारा लिमिट हो जाता था विद द विजिबल लाइट. जो हमारा माइक्रोस्कोप यूज़ करते थे, देयर वी आर यूजिंग द लैम्डा ऑफ द विजिबल लाइट. तो विजिबल लाइट की एक लैम्डा का मिनिमम लैम्डा कैन नॉट, फॉर द विजिबल लाइट कैन नॉट गो लेसर देन 400 नैनोमीटर. तो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता था. बट विद द इलेक्ट्रॉन दिस मैटर वेव जो हम इलेक्ट्रॉन की यूज़ करेंगे इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू सी द इंडिविजुअल हेयर वी कुड एबल टू सी द एटम्स ऑल्सो. हम अपने
अपने माइक्रोस्कोप से एटम्स को नहीं देख पाते थे बिकॉज द रेजोल्यूशन इज़ क्वाइट ब्लरी, ठीक है, हमारा जो पिक्चर आती थी उसकी क्वाइट ब्लरी आती थी बिकॉज द रिस्ट्रिक्शन वाज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन से वी कुड एबल टू गेट लेसर वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ ले सकते हैं, एंड दैट वेवलेंथ इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल विद इन आर डिफ्रेक्शन लिमिट, एंड वी कुड एबल टू सी द एटम्स देयर, ठीक है। सो दिस resolution and the resolution of our electron microscope is 1000 times more than the optical microscope, ठीक है। So this concept we are going to see today कि how the matter waves has been used as a electron microscope, ठीक है। And later on जो बहुत ही important link है आपका यहाँ से from the dual nature of matter से आपका atomic structure में, ठीक है, because we have seen कि जो हमारी third observation थी and the fourth observation जो थी हमारी कि आपकी जो आपका जो एनर्जी होती है एटम की, एनर्जी when the electron is moving around the, this is my nucleus, when the electron is moving around, why it is not spiraling down into the nucleus, ठीक है। that was the third observation. It is we have seen कि electromagnetic radiation it will keep on releasing the energy, and जैसे जैसे एनर्जी रिलीज करेगा इट शुड फॉल डाउन इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। सो वाई इट इज़ नॉट फॉलिंग डाउन इनटू द न्यूक्लियस, दैट इज अ डायरेक्ट लिंक विद योर मैटर वेव, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट द पार्टिकल, इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव, ठीक है। सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड द क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दिस थिंग ओनली, मैटर वेव, ठीक है। तो बोथ द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव सीन इन द बिगनिंग ऑफ अ डुअल नेचर में जो दो ऑब्जर्वेशन हमने देखी थी कि स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड द क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी लेवल, सो बोथ द थिंग्स, और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल इट्स डायरेक्टली लिंक विद योर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने देखी थी, ऑब्जर्वेशन देखी थी, दैट गॉट फील दैट both the observation can be given by the matter wave. Okay, the matter wave concept is the secret to your why the atoms are stable, ठीक है। So in the coming part हम लोग जब atomic structure पढ़ेंगे, so the base of that atomic structure, the reason behind why the things are happening like that in the atomic structure is the electron as a wave, ठीक है, matter wave की तरह, ठीक है। So that's we are going to discuss in today's lecture. So let us now get into today's lecture. So उससे जाने से पहले हमारे कुछ एक questions रह गए थे that we just look into it. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, डिटरमाइन द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को हिंट मिल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन यू कैन राइट इट ऑन हाफ mv², और रेस्ट मास कितनी हो गई, दैट इज m0c², ठीक है। रेस्ट मास हमारा m0 होता है, तो रेस्ट मास एनर्जी होगी आपके इलेक्ट्रॉन की m0c², ठीक है। तो यहाँ से आप एम यहाँ से m और मल्टीप्लाई कर दो तो m और v निकाल लो, बिकॉज आपको क्या निकालना है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड आउट द डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ कितनी होगी आपकी h डिवाइड बाई mv, तो आपको ये mv यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम हियर यू कैन गेट योर mv विद दिस रिलेशन, तो m² v² m मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड मैंने, तो यहाँ पे m² v² इज इक्वल टू दिस, नाउ टेकिंग द रूट ऑफ दिस, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ मास ऑफ योर प्रोटॉन, मास ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, एंड c की वैल्यू आपको पता ही है। फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर mv, ये जो mv आ जाएगा यू जस्ट पुट दिस mv हियर, यहाँ से आपका लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। Now second question में क्या कह रहा है, we have to find out the extent of localization of the particle is determined roughly by the de Broglie wavelength, ठीक है। if the electron is localized within the nuclear size this much, अब यहाँ पे कह रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन अगर मैं इतने ये न्यूक्लियर साइज है आपका, न्यूक्लियर साइज इज ऑलमोस्ट 10⁻⁻14 to 10⁻⁻15 होता है। वाई इसमें ये कहना चाह रहा है कि वाई कांट वी फिक्स द न्यूक्लियस, वाई कांट वी पुट द इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूक्लियर साइज, इतने न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं होता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो विल सी वाई इट इज़ नॉट देयर, बिकॉज अगर इतनी छोटी वेवलेंथ होगी दैट मीन्स ये आपका इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, दैट मीन्स ये जो 10⁻⁻4 है, इट इज़ -14 है, इट इज़ डिटरमाइनिंग के इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा कितना है, ठीक है। द मीन रेडियस इट इज़ बीन डिफाइनिंग के वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। तो इफ़ यू पुट दिस वेवलेंथ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी, बिकॉज एनर्जी क्या होती है आपकी sc/λ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वेवलेंथ हम ये रख देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी, और वो हम देखेंगे हाउ मच इज़ दैट एनर्जी, वेदर दिस एनर्जी इस टिपिकल बाइंडिंग एनर्जी जो होती है हमारी न्यूक्लियस के अंदर उसके बराबर होती है या नहीं होती। तो विल सी दैट एनर्जी, विल कंपेयर दैट एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन if it's been confined to this much distance, ठीक है। So that is what we see, the lambda साइज ऑफ द न्यूक्लियस हमारे पास ये दे रखा है, एनर्जी आ जाएगी हमारी इससे, एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस मच। नाउ विल फाइंड दिस एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 124.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस एनर्जी इज़ सुपर ह्यूज, बिकॉज एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो आपको ये एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो कि आपका जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो दे कैन नॉट प्रोवाइड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक तो भूल जाओ। इवन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो नॉट दिस मच, क्योंकि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी आपकी
8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी इन अपना न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। तो उसमें भी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की जो रेंज होती है अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल होती है, और यहाँ पे देखो कितनी आ रही है। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हैज़ कुड नॉट एबल टू सेट इनटू द न्यूक्लियस, इट विल गोइंग टू गेट electron has so much explosion energy that it would immediately blast itself right out of the nucleus, ठीक है। तो it cannot stay in this nucleus, ठीक है, right। now we'll see this next question। so इस next question में क्या कह रहा है मेरा, find the de Broglie wavelength associated with the helium atom in इन द हीलियम गैस। रूम टेम्परेचर दे रखा है, दैट मीन्स टेम्परेचर से आप यू कैन रिलेट इट विद काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है तो आप इससे लिंक इट विद द एनर्जी, तो इससे आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर दे रखा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी हैव टू कंपेयर इट विद द मीन सेपरेशन बिटवीन द 2 एटम्स अंडर दिस कंडीशन, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द कंपेयर इट विद द मीन सेपरेशन, एंड मीन सेपरेशन हमारे को यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दे रखा जैसे पहले कंडीशन में दे रखा था। वी हैव टू फाइंड आउट दिस मीन सेपरेशन यूजिंग द इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। इसको लेके हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज हमारे को एटमॉस्फेयर ये प्रेशर दे रखा है एंड टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। तो मीन वेवलेंथ हमारे को निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज़ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट हेयर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ क्वाइट ऑफ्टन इन थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। तो बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, अभी हमने देखा नहीं है थर्मोडाइनमिक्स, तो वी विल ट्राई टू डिराइव दैट कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम मीन सेपरेशन अभी निकालेंगे इसमें। बाकी ये de Broglie वेवलेंथ तो निकालना बहुत आसान है, आपके पास हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kT है, टी की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं m दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, mv² हो गया, दिस इज दिस, mv² इज नथिंग बट यूर p² का रूट ले लिया दोनों साइड, तो आपके पास मोमेंटम आ गई, दैट इज √3m kT। नाउ यू कैन पुट इनटू द de Broglie इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h बाई वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे पुट, यहाँ पे h बाई मोमेंटम की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे, एंड फ्रॉम हियर यू गॉट द de Broglie वेवलेंथ कम्स आउट टू बी 0.73 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग हमें जो निकालनी है यहाँ पे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द मीन सेपरेशन निकालने के लिए हमें जो चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, पहले तो हम हीलियम एटम का हम मास निकालते हैं, ठीक है। हीलियम एटम का मास निकालते हैं, तो आपके 1 मोल में यू विल बी हैविंग 6 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है। और 1 मोल में यू आर हैविंग, हीलियम एटम में कितने होते हैं, 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। इतने किलोग्राम हो गए, तो इससे मैं निकाल सकता हूँ अपना मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ एटम निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इतने ग्राम में मेरे पास इतने एटम्स हैं, तो 1 एटम में कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻23, तो मास ऑफ सिंगल एटम कम्स आउट टू बी मोलर मास, और उसमें कितने, 1 मोल हीलियम में मेरे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, दिस मैनी नंबर ऑफ एटम्स। तो मेरे पास पर एटम का मास आ गया, दैट इज़ 2/3 इंटू 10⁻26 किलोग्राम, ठीक है। दिस इज़ द पर एटम का मास आ गया। टेम्परेचर मेरे पास आ गया T इज इक्वल टू 27 + 273, इससे मेरा टेम्परेचर इन केल्विन आ गया। सो 1 मोल ऑफ गैस, इट वी नो दिस गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। n की वैल्यू 1 डाल दी है 1 मोल ऑफ गैस के लिए, तो PV इज इक्वल टू RT। अब यहाँ से हमारे को मीन सेपरेशन निकालनी है, तो मीन सेपरेशन हमारी बेसिकली हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, दीज आर योर गैस मॉलिक्यूल्स ओनली, ठीक है। नाउ दीज आर योर गैस मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से, ठीक है। सो मीन सेपरेशन जो गैस का हम लोग निकालते हैं, बेसिकली दे आर नॉट सो क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल। तो हम लोग क्या निकालते हैं, सपोज 4 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल वॉल्यूम आपका ये है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ये है, 4 गैस मॉलिक्यूल्स हैं। व्हाट वी विल डू, विल डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ईच गैस कितना वॉल्यूम ले रही है, ठीक है। व्हेन वी नो द ईच गैस कितना वॉल्यूम ले रही है, नाउ वी नो कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका विल फाइंड आउट दिस लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ निकाल लेंगे। दिस लेंथ इज नथिंग बट ये जो सेपरेशन के बराबर होती है दिस लेंथ, ठीक है। तो दिस लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मेरे को इसका इंडिविजुअल वॉल्यूम निकल जाएगा, तो इंडिविजुअल वॉल्यूम इट इज लाइक अ क्यूब, तो वी कैन टेक वॉल्यूम इज इक्वल टू D⁻³ हो जाएगा, ठीक है। दिस D एंड दिस D इज नथिंग बट योर मीन रेडियस। तो हमें ये मीन रेडियस निकालना है, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन फाइंड आउट द कितना वॉल्यूम है हमारा 1 मोल ऑफ गैस का, तो PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। नाउ हमने क्या किया यहाँ पे, हमें नंबर ऑफ मोल्स वी हैव टू हमें कितने नंबर ऑफ मेरे एटम्स हैं इसमें, उससे मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज वॉल्यूम जो एक इस वॉल्यूम में हाउ मेनी
atoms of heliums are there. Suppose 6 atoms are there, so I have to divide it into 6. ठीक है, then I've got volume by 6. ठीक है, volume by 6 is nothing but your d by 3. Now your d comes out to be equal to mean radius, that comes out to be equal to v by 6 raised to power 1 by 3. So that is what we have to do. So this n we have to डिवाइड, ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा. तो पी वी इजिकल टू एन आर टी में से एन से अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूँ, मैं एन से डिवाइड किया, एन से और एन से इसको डिवाइड किया, तो आर बाई एन आपका कितना आ जाएगा. आर बाई एन इज नथिंग बट योर के. ठीक है, दैट इज़ योर के. सॉरी, यहाँ पे हम हमारा ये तो आ गया था. और आर को वी कैन राइट इट डाउन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारा होता है आर बाई एन. ठीक है, तो यहाँ से आर को आई कैन राइट इट डाउन एन के. ठीक है, आर को मैंने लिख दिया एन के इंटू टी. ठीक है, आर को लिख दिया एन के इंटू टी. नाउ दिस एन आई ब्रिंग इट अंडर द वॉल्यूम. ठीक है, वी बाई एन कर दिया, दैट इज इक्वल टू के टी बाई पी. ठीक है, नाउ दिस वी बाई एन इज इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स हो गए, वो टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय एटम्स. तो इंडिविजुअल एटम का कितना वॉल्यूम वो स्पेस ले रहा होगा. ठीक है, उससे मेरे ये लेंथ आ जाएगी, एंड दिस लेंथ इज नथिंग बट योर मीन सेपरेशन. ठीक है, तो दैट इफ़ वी हैव दिस मच, दिस डिवाइडेड बाय एन, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर मीन सेपरेशन का क्यूब. ठीक है, दैट इज साइड ऑफ द क्यूब, साइड का क्यूब हो गया. अब इससे मेरा मीन सेपरेशन कम्स आउट टू इक्वल टू वी बाई एन डिवाइडेड बाय रेस्ट पावर 1 बाई 3. ठीक है, रेस्ट पावर 1 बाई 3. तो यहाँ से वी बाई एन हमारा कितना है, के टी बाई पी. टी मेरे को दे रखा है और प्रेशर मेरे को दे रखा है. ठीक है, के मेरे को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है, तो आई कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई मीन सेपरेशन. ठीक है, दैट इज मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन दैट रेस्ट पावर 1 बाई 3. तो के टी डिवाइडेड बाई पी. ठीक है, दैट इज इक्वल टू के टी बाई पी. टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, वी पुट द वैल्यू. तो हमारे पास मीन सेपरेशन कम्स आउट टू इक्वल टू 3.4 इंटू 10 टू द पावर -10. ठीक है, तो हेयर आर इज ग्रेटर देन योर लैम्डा. सो हीलियम एटम विल नॉट ओवरलैप बिकॉज योर मीन सेपरेशन. ठीक है, मीन सेपरेशन इज ग्रेटर देन, ये जो दोनों एटम के बीच में मीन सेपरेशन इज ग्रेटर देन लैम्डा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्लाउड विल बी लाइक दिस, इसका प्रोबेबिलिटी क्लाउड विल बी लाइक दिस, दे विल नॉट बी ओवरलैपिंग. सो वी कैन से कि जो वेव पैकेट होगा इसका, दैट इज प्रोबेबिलिटी क्लाउड जो होगा. ठीक है, वेव पैकेट अभी हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज दिस वेव पैकेट. ठीक है, तो इट इज़ जो हमने देखा था ना कि डीलोकलाइज करते हैं, तो दैट डीलोकलाइजेशन वी शो, डुअल नेचर होता है हमारा मैटर का. तो उस मैटर को किस तरीके से शो करेंगे, पार्टिकल नहीं शो कर सकते, वेव नहीं शो कर सकते, वी शो इट विद द कॉम्प्रोमाइज जो होता है हमारा, दैट विच वी कॉल द वेव पैकेट. ठीक है, उसको बोलते हैं वेव पैकेट. एंड वेव पैकेट इज़ नथिंग बट प्रोबेबिलिटी कि कितना प्रोबेबिलिटी है आपका जो पार्टिकल है उस वेव पैकेट में फाइंड आउट करने की. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल द वेव पैकेट. सो हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन. सो नाउ दीज वेव पैकेट्स आर नॉट ओवरलैपिंग. ठीक है, तो वी कैन ईजिली सी देम डिस्टिंक्टली. ठीक है, वी कैन ईजिली सी देम डिस्टिंक्टली, राइट. नाउ विल सी द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव्स. तो मैटर वेव्स इज ऑल्सो कॉल्ड डी ब्रॉय वेव्स. ठीक है, दे डिस्क्राइब द वेव नेचर ऑफ ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट. ठीक है, सारा जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मे बी योर इलेक्ट्रॉन सबएटॉमिक पार्टिकल और द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक योर बेस बॉल्स. ठीक है, दे डिस्क्राइब द वेव नेचर ऑफ ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, when we speak of the properties of the matter waves, we are essentially talking about how the universe is balancing between the stuffiness of the matter and the spreading of the wave. जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्टफ्ड अप है, ठीक है, बहुत छोटा है, तो इसकी वेवलेंथ विल बी हाई. ठीक है, बेस बॉल काफ़ी बड़ी है, तो उसकी वेवलेंथ विल बी लो. सो दैट इज़ हाउ द यूनिवर्स बैलेंसेज बिटवीन द स्टफनेस ऑफ द मैटर एंड द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स. ठीक है, नाउ जो आपकी मैटर वेव्स है, दैट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, बिकॉज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलेटेड विद द चार्ज पार्टिकल ओनली, तो बट हियर द मैटर वेव्स इज रिलेटेड विद द मूविंग पार्टिकल. ठीक है, पहले तो मूविंग पार्टिकल होना चाहिए, सेकंड इट कैन बी रिलेटेड विद द चार्ज पार्टिकल एंड द अनचार्ज पार्टिकल, दोनों से रिलेट करता है. ठीक है, नाउ वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव अगर हम देखें, तो वेलोसिटी आपकी मैटर वेव किस तरीके से निकालती है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा. तो फ्रीक्वेंसी आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ई डिवाइडेड बाई एच इंटू एच बाई एम वी आपका लैम्डा हो गया. ठीक है, नाउ हेयर एच से एच कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे देखो इसकी जगह मैंने एम सी स्क्वायर डाल दिया, तो यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सी स्क्वायर बाई वी. ठीक है, तो नाउ इट कम्स आउट, अगर हम देखें सी स्क्वायर बाई वी इज नथिंग बट दिस कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन माई स्पीड ऑफ माई लाइट. ठीक है, एंड विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. हेयर द मैटर वेव जो आ रही है हमारी, दैट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द लाइट, which is not at all possible because everything is limited with the speed of light. But actually individual matter waves does not matter because it is not carrying the information, because एक सिंगल पार्टिकल है, it is releasing so much amount of the waves. ठीक है, उस वेव्स का जो सुपरपोजिशन होता है, उस वेव्स का जो टोटल क्यूमुलेशन होता है, दैट इज़ व्हाट कैरिंग द एनर्जी. ठीक है, इंडिविजुअल वेव्स मे बी मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, बट जो इन्फॉर्मेशन कैरी होते हैं, हमारे जो लिमिटेशन है कि नो इन्फॉर्मेशन कैन ट्रैवल और फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, एंड नो
नो मैटर इज ट्रैवलिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट. सो इट इज़ लाइक कि आपका जैसे होता है ना, इफ़ यू आर हैविंग द स्वॉर्म ऑफ बीस, ठीक है, बहुत सारी ये स्वॉर्म ऑफ बीस है अंदर, तो ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ठीक है, बट इंडिविजुअल इनकी स्पीड अंदर 100 मीटर पर सेकेंड है. दैट मे बी इंडिविजुअल स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है एंड दैट कैन बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, वो सी से भी ज़्यादा हो सकती है, बट ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा स्वॉर्म ऑफ बीस है अंदर, ये तो पूरा स्वॉर्म है, बट ये पूरा का पूरा स्वॉर्म ऑफ बीस इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड विच इज़ लेसर देन माई सी, ठीक है. तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज व्हाट वी कॉल द फेज वेलोसिटी, जो इंडिविजुअल वेलोसिटी होती है आपकी वेव्स की, एंड टोटल जो इन सब की वेलोसिटी को बोलते हैं वी कॉल इट अ ग्रुप वेलोसिटी. हेयर व्हाट इट मैटर्स इज द ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है. ग्रुप वेलोसिटी मीन्स के टोटल इन्फॉर्मेशन और टोटल जो एंटायर वेव है आपकी, सारी इंडिविजुअल वेव्स को मिला के जो एक एंटायर वेव पैकेट बनता है, ठीक है. तो सपोज एक पार्टिकल है दैट इज एमिटिंग सो मेनी वेव्स, ठीक है, एक वेव ये कर रहा है, ये वेव कर रहा है, तो इन सबका सुपर पोजिशन कम्स आउट टू बी लाइक दिस. तो इन सबका जो सुपर पोजिशन बनता है दैट इज लाइक दिस काइंड ऑफ अ वेव, ठीक है, दैट इज दिस काइंड ऑफ अ वेव, इन सबका सुपर पोजिशन बनता है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द वेव पैकेट, ठीक है, इसको बोला जाता है वेव पैकेट. एंड दे मूव इट विद द स्पीड विच इज़ लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. सो यहाँ पे दैट इज़ व्हाट मैटर. तो आपकी जो इंडिविजुअल मैटर वेव्स होती है दैट कैन मूव ग्रेटर देन दिस, बट दिस इज नॉट द फिजिकल स्पीड, बिकॉज फिजिकल स्पीड क्या है इसकी, जो ग्रुप स्पीड है, पूरे का पूरा ग्रुप की स्पीड से चल रहा है, ठीक है. जब भी ये आए तो जस्ट थिंक इट ऑफ कि स्वॉर्म ऑफ बीस इंडिविजुअल मे बी मूविंग फास्टर देन लाइट, बट जो ओवरऑल स्वॉर्म हो रहा है बीस का दैट इज मूविंग लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. सो tiny ripple in phase, they are moving faster than the speed of light, but it is only mathematical speed because no energy and the no information can travel faster than the speed of light. Here the particle is representing, here हम जो particle को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ रिलीजिंग मल्टीपल वेवलेंथ, बट वी आर रिप्रेजेंटिंग इज बाय द वेव पैकेट, ठीक है. इसको वेव पैकेट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है. दैट इज़ अ समेशन ऑफ योर ऑल द वेव्स दैट इज बीन रिलीजिंग, तो वी कॉल इट अ वेव पैकेट एंड विच इज़ मूविंग विद अ ग्रुप वेलोसिटी एंड दिस ग्रुप वेलोसिटी इज लेसर देन माई स्पीड ऑफ लाइट. तो फेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी, इट इज़ द स्पीड ऑफ एट विच द इंडिविजुअल crust and throw of the wave travel, ठीक है. And this is a mathematical concept only, since individual crusts do not carry information and they are allowed to move faster than the speed of light without violating the causality, ठीक है. They can move faster than the speed of light because it is just the mathematical concept, they are not carrying any information. Group वेलोसिटी क्या होती है आपकी, दिस इज द स्पीड वेयर द एंटायर पैकेट इज बिन मूविंग, ठीक है. इन सब का जो कॉम्बिनेशन आता है दिस इज द वेव पैकेट विच इज़ फॉर्मिंग. नाउ दिस वेव पैकेट विच इज़ बीन मूविंग, ये इंडिविजुअल वेव तो आपकी बहुत फास्ट मूव कर सकती है, बट ये जो आपका वेव पैकेट है दिस इज बीन मूविंग at a speed of light which is at a lesser than speed of light, ठीक है. This entire wave packet, that is particle itself, जो पूरा का entire particle क्या है, that is a wave packet that we are going to represent, ठीक है. It is moving itself with a group velocity and which is always less than or equal to the speed of light, ठीक है. Think of wave packet as जैसे I've told you कि swarm of bees के बहुत सारे bees का झुंड है, उसमें individual bee in phase they might zip around with different speed which can be greater than the speed of light. But the swarm as a whole, as a group, they moves across the park, ठीक है. as a group they are moving across the park which is lesser speed, ठीक है. here, ठीक है. तो that is the difference between your group velocity and your wave is your phase velocity, ठीक है. but we are only concerned about the group velocity here, ठीक है, which carries the information and which is the actual speed which the particle is moving, ठीक है. Now de Broglie wavelength is why we can't see the de Broglie wavelength in the ordinary. It is there. Ordinary जो objects होते हैं हमारे like जैसे हमने देखा था baseball, de Broglie wavelength is available for is applicable for all physical object. तो it can be applicable for the baseballs also, ठीक है. But the problem here is कि इसमें जो wave nature होता है that is very small which is difficult to detect also, ठीक है. Because de Broglie wavelength in the ordinary wave nature we totally ignore it, ठीक है. Why? Because the lambda is so small. If you take lambda of 46 gram of a golf ball and which is moving at a speed 30 meter per second, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे it comes out to be 4.8 into 10 to the power minus 34, which is so less. You cannot have any object with which it can interfere and show some interference pattern, ठीक है. So there is no such slit because आपका जो atomic nucleus size भी होता है that is 10 to the power minus 15, वो उससे भी छोटी है, तो इसका physical significance it just loses, ठीक है. So we ignore the wave nature of the ordinary object into our day to day life, ठीक है.
वेव और पार्टिकल का नेचर रहता है, इट कैन नॉट बी अब्जॉर्ब्ड एट द सेम टाइम, ठीक है। दोनों, या तो आपका वेव नेचर शो हो रहा होगा या पार्टिकल नेचर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो वेव एंड पार्टिकल नेचर एस्पेक्ट्स ऑफ ए मूविंग बॉडी नेवर ऑब्जर्व्ड एट द सेम टाइम, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। विच नेचर डोमिनेट्स, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ योर लैम्डा एंड द डायमेंशन ऑफ योर इंट्रैक्शन, ठीक है। जिस हाउ योर, जितना आपका वेवलेंथ होगा और जिसके साथ वो इंट्रैक्ट कर रहा है उसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपको वेव नेचर उसका कंसिडर करना है एंड द पार्टिकल नेचर कंसिडर करना है। जैसे हमने लाइट में ही देखा था कि हाउ द स्लिट डिस्टेंस एंड योर वेवलेंथ इज बीन डिसाइडिंग वेदर इट इज़ अ वेव नेचर और इट इज़ अ रे नेचर दैट वी आर कंसिडरिंग, पार्टिकल नेचर और द वेव नेचर। सेम वे हेयर, यहाँ पे आपका पार्टिकल और वेव नेचर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड विच नेचर डोमिनेट्स डिपेंड्स अपॉन द लैम्डा, वेवलेंथ एंड योर डायमेंशन ऑफ योर इंट्रैक्शन, ठीक है। Now we'll see the concept of our wave packet that we are talking about quite often. So जैसे क्लासिकल में हम लोग क्या डिस्कस करते थे कि जो पॉइंट पार्टिकल होता है वी कैन शो इट विद अ सिंगल कोऑर्डिनेट, ठीक है। और मैटर वेव को हम लोग क्या करते, हमने क्लासिकल में पॉइंट पार्टिकल को, वी आर टेकिंग पार्टिकल नेचर को हम लोग क्या सिंगल कोऑर्डिनेट से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते थे। बट यहाँ पे मैटर वेव जो होती है हमारी, मैटर वेव मीन्स कि इट्स शोइंग द वेव एंड द पार्टिकल नेचर ऑल्सो, वी कैन नॉट शो इट विद अ सिंगल कोऑर्डिनेट से हम नहीं शो कर सकते। वी हैव टू शो इट विद द, वी कैन ओनली शो इट विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैटर वेव होगी यू कैन नॉट शो इट कि दिस इज़ द पॉइंट और द सिंगल कोऑर्डिनेट, यू हैव टू शो इट विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि उसको फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और कितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किसी एरिया में, ठीक है। दैट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू represent matter wave with the probability distribution. The particle is not low because आपकी जो matter wave होती है, it is not a particle which is it is not located at one particular point, it is smeared out in the over the whole space, ठीक है। Plus the size of the smear, जो ये जितना ये स्प्रेड आउट होता है, स्मेयरिंग आउट होता है, द साइज ऑफ दैट स्मेयरिंग आउट इज कॉल्ड अ वेव पैकेट एंड वी कॉल दैट, वी डोंट से द वेव पैकेट इज हेयर और वी से द देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज हाईएस्ट हेयर, ठीक है। तो हम वेव पैकेट शो करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दैट रीजन इज हाईएस्ट हेयर। और किस तरीके से वेव पैकेट और तो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ एट एनी पॉइंट। सो सपोज दिस इज योर डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो दिस इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मोर, ठीक है। अगर ये आपकी डी ब्रॉय वेवलेंथ है तो दिस इज 3 पोजिशन वेयर यू आर हैविंग द स्क्वायर ऑफ योर एम्पलीट्यूड एंड इन दिस 3 पोजिशन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है। सो here we cannot represent it with the dot के ये वाला पार्टिकल इस पोजीशन पे, we just represent with this is the probability cloud, ठीक है। इस probability cloud से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपकी this is your wavelength of your डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो this is the probability of your particle which is going to find out, ठीक है। सो इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि बिकॉज सिंगल पार्टिकल है, इट इज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल वेज, तो उन सबके सुपरपोजिशन को वी रिस्ट्रिक्ट इट एंड वी कॉल इट दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी स्क्वायर ऑफ योर एम्पलीट्यूड, दिस इज द पोजिशन, दिस इज द प्लेस वेयर देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है। इस तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ एट एनी पॉइंट इज द प्रोपोर्शन टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट, ठीक है। नाउ क्लासिकल और वेव मैटर वेव में क्या डिफरेंस है हमारा, पोजीशन आप प्रिसाइज पॉइंट कर सकते थे क्लासिकल में, ठीक है, विच वी यूज़ इट जहाँ पे वेव नेचर बहुत कम हो जाता है, लाइक द बिलियर्ड बॉल। जितने बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यू कैन रिप्रेजेंट द पार्टिकल नेचर विद अ सिंगल प्रिसाइज पॉइंट। बट मैटर वेव हो गए, जितने भी आपके माइक्रो लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए एट ए क्वांटम लेवल, एट ए माइक्रो लेवल, दैट यू कैन नॉट प्रिसाइजली प्रिसाइजली पॉइंट देम, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या शो करना पड़ेगा, दिस काइंड ऑफ ए क्लाउड शो करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्लाउड। मोशन क्या होगा, दैट इज हैविंग अ डेफिनेट ट्रेजेक्टरी, बट यहाँ पे जो मोशन होगा दैट इज़ अ वेव पैकेट ग्रुप वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे, ठीक है। सो दे आर मूविंग लाइक अ ग्रुप वेलोसिटी के साथ, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, दे आर मूविंग इन अ ग्रुप। इंट्रैक्शन, दे सिंपली कोलाइड और बाउंस करेंगे, बट यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होगा दैट इज़ अ डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है। आइडेंटिटी यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल होती है, यू कैन डिस्टिंग्विश 2 बिलियर्ड बॉल्स, बट यहाँ पे मैटर वेव में इट इज़ डिस्टिंग्विशेबल बिकॉज ये ओवरलैप कर जाते हैं, इनके जो क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, उनके ओवरलैप कर जाते हैं, सो इट इज़ क्वाइटली इंडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। Now we'll see the next topic, what is the practical application of our matter waves, ठीक है।
तो रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ लिमिटेड बाय योर लैम्डा, बिकॉज रिजोल्यूशन क्या होता है, दैट इज़ डी मिनिमम। आप सबसे छोटे से छोटा कितना देख सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच में जो डी मिनिमम है, डी मिनिमम इज़ द डिस्टेंस मिनिमम, वो कितना देख सकते हैं, दैट इज़ बीन प्रोपोर्शन टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। तो जो सो इफ़ यू सी डी मिनिमम आपका इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू योर लैम्डा, जितना आपका छोटा लैम्डा होगा उतना आपका डी मिनिमम छोटा होगा। बट लैम्डा फॉर द हमारा माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दैट इज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय योर लैम्डा ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट से आपका रिस्ट्रिक्ट कर जाता है, क्योंकि इससे कम तो आप लाइट देख ही नहीं सकते, लाइट विजिबल ही नहीं होगी, तो यू कुड नॉट एबल टू सी इट इन योर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, दिख ही नहीं पाएगा। तो हेयर योर डी इज़ बीन लिमिटेड बाय द विजिबल लाइट का लैम्डा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे डी मिनिमम, जितना आपका छोटा लैम्डा होगा उतना बेटर रेजोल्यूशन होगा, जो लार्ज लैम्डा होगा पुअर रेजोल्यूशन होगा। जो आप अगर सोर्स आपकी लाइट है, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप में लेते हैं, तो लाइट वेव्स क्या होती हैं उसकी ऑन एन एवरेज जो वेवलेंथ होती है 500 नैनोमीटर होती है। रेजोल्यूशन कितना होता है, यू कैन मेजर इट अप टू 200 नैनोमीटर का स्मॉल डिस्टेंस देख सकते हैं। 200 नैनोमीटर के स्मॉल डिस्टेंस से आप देख सकते हैं सेल्स देख सकते हैं, बैक्टीरिया देख सकते हैं, बट इससे छोटे वाले जो हमारे जैसे वायरस होता है, एटम्स होता है, यू कुड नॉट एबल टू सी देम, ठीक है, बिकॉज एटम का साइज़ होता है आपका 0.1 नैनोमीटर, और आप देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से 200 नैनोमीटर तक की चीज़ें देख सकते हैं, इससे ज़्यादा वो ब्लर हो जाएंगी, यू कुड नॉट एबल टू सी, ठीक है। और एटम्स कितना ये छोटा है, तो लाइट इज़ 5000 टाइम्स बिगर देन दिस, ठीक है। अगर आप मैग्नीफिकेशन बढ़ाओगे इसका तो आप ब्लरिंग बढ़ाओगे, बस सिंपल, ठीक है। तो यू कुड नॉट एबल टू सी इट, बट विद द electron you can get a wavelength which is almost of size of this, and you could able to see the within the diffraction limit you could able to see these atoms, ठीक है। किस तरीके से डी ब्रॉय वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है हमारी 12.3 डिवाइड बाई √v। अब v को अगर मैं 10,000 वोल्ट से इसको मैं एक्सीलेट करूँगा तो मेरे पास जो वेवलेंथ आएगी इलेक्ट्रॉन की कम्स आउट टू बी 0.01 नैनोमीटर, ठीक है, विच इज़ स्मॉलर देन द एटम, ठीक है। यहाँ पे एटम से छोटी है, तो यू कुड एबल टू सी यहाँ पे आपका r जो होगा दैट इज़ यहाँ पे जो r होगा दैट इज़ 0.1, जो मीन डिस्टेंस होगा दैट इज़ 0.1 mm, ठीक है, दो एटम्स के बीच में। एंड फ्रॉम हेयर वी कैन सी इट इज़ विद इन द डिफ्रेक्शन लिमिट एंड विच इज़ अबव एंड अलाउ द एटॉमिक रेजोल्यूशन, ठीक है, बिकॉज योर लैम्डा इज स्मॉलर देन योर एटम, ठीक है। ये जो एटम के बीच में जो हमारी स्पेसिंग होगी दैट इज़ जो एटम होगा हमारा, एटम का जो साइज़ है दैट इज़ 0.1 नैनोमीटर है, ठीक है, उससे छोटी हमारी वेवलेंथ है, ठीक है, उससे छोटी हमारी वेवलेंथ है, एंड विच इज़ विद इन द डिफ्रेक्शन लिमिट एंड विच अलाउ द एटॉमिक रेजोल्यूशन, ठीक है। सो अगर हम देखें हमारा magnification of your light microscope is almost 1500 times, and the magnification with your electron microscope is 1 lakh times. You could able to see virus, protein, atoms, all these things you could able to see your electron microscope. So electric and the magnetic fields act as a इलेक्ट्रॉन लेंसेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो वी डोंट हैव दैट लेंसेज जो हम इलेक्ट्रॉन अपना नॉर्मल माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं, वी डोंट हैव दैट सेट ऑफ लेंसेज नहीं होते यहाँ पे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वर्क एज अ लेंस फॉर देम, ठीक है, दे बेंड द इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर हम देखें रेजोल्यूशन की बात करें, तो अगर हम वाइट ब्लड सेल देखें, दिस इज़ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आपका लिया हुआ, एंड दिस आर द रेड ब्लड सेल्स एंड द वाइट ब्लड सेल्स विच इज़ बीन टेकन इन योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सी द रेजोल्यूशन हियर, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर मैटर वेव। नाउ वी विल सी कि अगर हम वाई वी यूज़ ओनली द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वाई कांट वी यूज़ द प्रोटॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज हमें अगर हम देखें लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बी मोर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन को हम लोग और भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज जितनी आप लैम्डा डिक्रीज़ करोगे आपका डी क्या होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जितना आप लैम्डा डिक्रीज़ करोगे उतना आप बेटर रिजोल्यूशन ले पाओगे। तो प्रोटॉन की हमारी सेम प्रोटॉन की जो होगी हमारी लैम्डा विल बी लेसर देन माई लैम्डा ऑफ माई इलेक्ट्रॉन, तो वाई कांट वी यूज़ द प्रोटॉन माइक्रोस्कोप। सो हेयर वी विल सी द रीज़न वाई वी कांट use the proton microscope. So the speed of electron in the electron microscope has been given 10 to the power 8 if the proton with the same speed are used instead of electron, ठीक है, same speed of proton use करूँगा instead of electron. What is the additional advantage of such proton microscope over the electron microscope? तो हमारा लैम्डा होता है h/mv, ठीक है। नाउ यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आपका हाई है तो आपकी लैम्डा कम हो जाएगी, ठीक है, ऑब्वियसली इन्वर्स प्रोपोर्शन टू मास ऑफ प्रोटॉन है, तो दैट इज़ मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 36 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट मीन्स आपकी जो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कम्स आउट टू बी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1836 कम आएगी। जितना कम आपकी लैम्डा होगी उतनी अच्छी रिजोल्यूशन पावर होगी। सो प्रोटॉन माइक्रोस्कोप फॉर द सेम
स्पीड विद विच इट इज़ बीन सेम स्पीड के लिए हमारा जो प्रोटॉन माइक्रोस्कोप होगा दैट इज़ 1836 टाइम मोर रिजॉल्व विच इज़ गोइंग टू रिजॉल्व द पिक्चर्स मोर देन द इलेक्ट्रॉन. बट द प्रॉब्लम क्या होती है? हैवीनेस. ठीक है, 3 प्रॉब्लम आती है इसमें. हैवीनेस प्रॉब्लम, डिस्ट्रक्शन प्रॉब्लम एंड और उससे रिलेटेड पे कॉस्ट और साइज. ठीक है, बिकॉज नाउ इलेक्ट्रॉन लाइट होते हैं. ठीक है, दे आर इनक्रेडिबली ईजी टू स्टेयर एंड फोकस यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से उसको आराम से स्टेयर किया जा सकता है. प्रोटॉन्स आर वेरी हैवी. ठीक है, सी द साइज ऑफ द प्रोटॉन, सी द साइज, हैवीनेस, इट इज़ 1836 टाइम एंड दे प्रोसेस अ सिग्निफिकेंट इनर्शिया. ठीक है, दैट इज हैवीनेस प्रॉब्लम, meaning that they are much harder to bend and focus on sharp on the image. ठीक है, they are much harder to bend. You need a more powerful, complex and the larger magnetic field to use those. जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है and which is becoming unreliable. सेकेंड होती है डिस्ट्रक्शन प्रॉब्लम, बिकॉज अब प्रोटॉन क्या होता है? इट इज़ लाइक ए कैनन बॉल. ठीक है, जितना इसका साइज़ है इसके कंपैरिजन में दीज कंपेयर विद द पिंग पोंग बॉल्स ऑफ योर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज़ लाइक अ पिंग पोंग बॉल एंड दिस इज लाइक अ कैनन बॉल. अब जब इतनी हाई स्पीड से प्रोटॉन हिट करेगा किसी बायोलॉजिकल सैंपल को, क्या करेगा? वो उसको स्कैटर कर देगा, उसको तोड़ देगा और उसको फैलाता है, उसको खत्म कर देगा, जो भी आपका बायोलॉजिकल सैंपल आप देख रहे हो. ठीक है, इट स्लिप्स थ्रू द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड कॉज अ रेडिएशन डैमेज. ठीक है, एंड विच इज़ वेरी ईजी फॉर द प्रोटॉन माइक्रोस्कोप टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द सैंपल. वो सैंपल को ही पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा इवन बिफोर इट कैप्चर द सिंगल इमेज. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स बल्की साइज. द थर्ड इज द कॉस्ट एंड साइज. अगेन टू जनरेट सच मैसिव, इतनी हाई स्पीड को जनरेट करने के लिए, सेम अमाउंट स्पीड को जनरेट करने के लिए यू नीड मैसिव एनर्जी एंड द इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, टू जनरेट दिस मच अमाउंट ऑफ स्पीड विच इज इक्विवेलेंट टू योर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो फॉर आपका इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसके लिए पूरे के पूरे आपको स्मॉल पार्टिकल एक्सेलरेटर चाहिए होगा लाइक साइक्लोट्रॉन टू जस्ट टू क्रिएट एंड गाइड द बीम ऑफ योर प्रोटॉन. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यू कैन फिट इट इनटू द रूम इटसेल्फ. ठीक है, सो अगेन द मैसिव कॉस्ट एंड द साइज इज अनदर प्रॉब्लम विद द प्रोटॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, राइट. नाउ विल सी और मैटर वेव्स एंड द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो मैटर वेव्स में हम लोगों ने देख लिया कि मैटर वेव्स इज काइंड यू कैन नॉट लोकलाइज इट थिंग. तो जो इंपॉर्टेंट थिंग होती है दैट इज मैटर वेव के, दैट इज द डी लोकलाइजेशन. यू कैन नॉट रिप्रेजेंट विद अ सिंगल पॉइंट बिकॉज मैटर वेव्स आर लाइक we have to represent it with the wave packet. ठीक है, we have to represent with the wave packet. A wave packet क्या है? It is a quantum mechanical way of describing a particle. ठीक है, पार्टिकल को हम लोग क्लासिकल वे में किस तरीके से डिफाइन करते थे? विद द पॉइंट, विद द डॉट ओनली, विद अ सिंगल कोऑर्डिनेट. वेव पैकेट जो मैटर वेव्स होती हैं, बिकॉज नाउ वी हैव शोन द डुअल नेचर, इट इज ऑल्सो हैविंग द स्प्रेडनेस ऑल्सो. तो हाउ वी रिप्रेजेंट द मैटर वेव्स? वी रिप्रेजेंट इट विद द वेव पैकेट. वेव पैकेट इज अ quantum mechanical way of describing the particle in the word of very small. You cannot have a particle that is both perfectly defined with a dot and perfectly defined with a wave. So micro level पे you cannot define any particle with the dot or perfectly define it with a wave. So we have wave packet as a compromise that the nature uses to describe both the properties. ठीक है, wave nature जो है quantum mechanical way and it is a compromise to describe both particle and the wave nature. ठीक है, wave packet is a localized way that you're localizing your position. ठीक है, you are restricting your position for your various wavelengths. थिंक ऑफ वेव पैकेट एज अ लोकलाइज पल्स. ठीक है, बिकॉज आपके पास अगर बहुत सारी वेव्स हैं, ठीक है, बहुत सारी वेव्स हैं, तो इन सारी वेव्स को अगर हम सुपरपोजिशन देखें इन सारी वेव्स का, तो दे विल गेट लोकलाइज टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, दे विल, अगर इन सारी वेव्स का, क्योंकि काफ़ी सारी वेव्स हैं आपकी. ठीक है, सो इस तरीके से काफ़ी सारी वेव्स हैं, तो दे माइट इंटरफेयर, दे माइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी. तो एक इस तरीके से सपोज आपका इस तरीके से एक आपका वेव पैकेट मिल जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर कंस्ट्रक्टिव एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ सो मेनी वेव्स. तो ये जो वेव पैकेट मिलता है, दिस इज व्हाट के आप लोकलाइज कर रहे हो. जितनी ज़्यादा वेवलेंथ ले आओगे, सपोज आप 2 वेवलेंथ लेके आओगे, तो उन दोनों के सुपरपोजिशन से आपको मतलब इतना लोकलाइजेशन नहीं मिलेगा. अगर आप बहुत सारी वेवलेंथ लोगे, इफ़ यू आर गोइंग टू ब्रिंग सो मेनी वेवलेंथ्स, देन यू कैन गेट अ बहुत स्मॉल लोकलाइजेशन मिल जाएगा. तो दैट मीन्स इन्वर्सिव पोर्शन, जितनी आपकी वेवलेंथ, जितनी आपकी नंबर ऑफ वेव्स बढ़ती जाएंगी, उतना आपका लोकलाइजेशन बढ़ता जाएगा. ये आपका उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकलाइजेशन, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा जितना आप नंबर ऑफ वेव्स इकट्ठी करते जाओगे. ठीक है, सो वेव पैकेट इज अ लोकलाइज पल्स, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वेव. जितना वेव्स बढ़ेंगी उतना ये लोकलाइजेशन बढ़ता रहेगा. ठीक है, तो वेव पैकेट इज अ लोकलाइज वेव और ए ग्रुप ऑफ वेव्स ट्रैवल टुगेदर. तो
जो वेव पैकेट होती है दैट रिप्रेजेंट द वेव नेचर किस तरीके से करता है, दैट इज फॉर्म बाय द सुपर पोजिशन एडिंग टुगेदर ऑफ मैनी इंडिविजुअल वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट वेव लेंथ। ठीक है, जिस तरीके से मैनी डिफरेंट वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट वेव लेंथ का जब सुपर पोजिशन करोगे, एक वेव होगी, ठीक है, एक वेव में यू कैन नॉट एबल, एक वेव का मतलब हो गया कि आपका जो पार्टिकल की पोजिशन इज स्प्रेड ओवर द होल प्लेस। ठीक है, जितनी आप वेव ऐड करते रहोगे इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स कि उस पोजीशन पे पार्टिकल होगा नहीं। अगर दो वेव हैं आपकी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं तो ये इस तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे तो पार्टिकल होगा नहीं क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो पार्टिकल विल बी अवेलेबल ओनली इन दीज टू प्लेसेस। तो आप जितनी ज़्यादा वेव लेते जाओगे तो उतना ज़्यादा आप उस पार्टिकल की पोजीशन को लोकलाइज करते रहोगे। ठीक है, तो वेव नेचर किस तरीके से निकलता है आपका वेव पैकेट का, कि इट इज़ फॉर्म बाय द सुपरपोजिशन ऑफ योर एडिंग वेव्स ऑफ मैनी इंडिविजुअल वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट वेव लेंथ। पार्टिकल नेचर, बिकॉज अब पार्टिकल नेचर किस तरीके से आ रहा है, बिकॉज द वेव्स आर एडेड टुगेदर सो दे इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली एवरीवेयर एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफिक रीजन। ये स्पेसिफिक रीजन अगर हम देखें, इस रीजन को छोड़ के बाकी सब जगह ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। ठीक है, सो दैट मीन्स इट क्रिएट्स अ पैकेट, इट क्रिएट्स अ बम्प और द पैकेट लाइक दिस एंड दैट इज मूविंग इन अ स्पेस। ठीक है, ये पैकेट और ये मूव कर रहा है स्पेस में। ठीक है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी कि इतने रीजन में आपका इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल फाइंड आउट होगा। ठीक है, एंड दैट इज मूविंग विद द ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, दैट पैकेट इज मूविंग विद द ग्रुप वेलोसिटी एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द पार्टिकल हेयर। ठीक है, तो ये पैकेट को हम लोग यहाँ पे पार्टिकल बोलेंगे, एक लोकलाइज्ड हो गया। ठीक है, सो इट इज़ नॉट लाइक अ डॉट, इट इज़ लाइक अ प्रोबेबिलिटी कि इतने पोजीशन में ये पार्टिकल की अवेलेबिलिटी की पोजीशन है। ठीक है, तो अब नाउ आउटकम ऑफ दिस ओनली, ये दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ का आउटकम होता है आपका हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसको थोड़ा इंट्यूटिवली देखते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गो डीप मैथ्स इनटू इट। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल एट द सेम टाइम एग्जैक्टली। कि सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को आप एक साथ नहीं पता कर सकते। ठीक है, अगर आपने पोजीशन पता कर ली तो आपकी मोमेंटम नहीं पता कर सकते, अगर आपने मोमेंटम पता कर ली तो आप पोजीशन नहीं पता कर सकते उसकी। तो उसको इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। सपोज ये बॉल है आपकी, ठीक है, ये बॉल की आपको पोजीशन पता है, यू कुड एबल टू सी नो इस पोजीशन, बट यू विल नॉट नो वेयर इट इज़ मूविंग। ठीक है, वेयर इट इज़ मूविंग यू विल नॉट नो वेयर इट इज़ मूविंग। ठीक है, तो पोजीशन पता लग गई बट इसकी मोमेंटम नहीं पता। ठीक है, मोमेंटम मतलब कि किस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, यू डोंट नो। ठीक है, आपने पोजीशन देख ली, नाउ द बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, नाउ यू कुड एबल टू सी बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो नाउ यू नो द मोमेंटम इसकी पता लग गई, आपकी वेलोसिटी पता लग गई, इसकी मोमेंटम पता लग गई, बट कैन यू सी द पोजीशन ऑफ इट। ठीक है, इट इज़ लाइक अ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये वेव पैकेट की तरह बना रहा ना, यू विल नॉट नो द पोजीशन ऑफ इट बट यू नो द प्रोबेबिलिटी के इस पोजीशन में देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द बॉल। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद द सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद द सब एटॉमिक पार्टिकल के यू विल नॉट नो बोथ द थिंग्स। अगर आपको पोजीशन पता लग गई तो यू विल नॉट नो वेयर इट इज़ मूविंग। ठीक है, अगर आपको इसकी मोमेंटम पता लग गई इस डायरेक्शन में इट इज़ मूविंग, बट यू विल नेवर नो कि पोजीशन क्या है इसकी, कि एट विच पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन, यू विल नेवर नो द पोजीशन। बट यहाँ पे हाँ, इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि यू नो कि इतने पोजीशन में द बॉल विल बी देयर। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इट्स कॉल्ड द वेव पैकेट। ठीक है, तो नाउ इफ़ विल सी इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। ठीक है, इससे तो आपको इंट्यूटिवली एक पिक्चर मिल गई होगी। नाउ विल सी विद दिस कि वाई द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ देयर। सो सपोज या तो आप एक चीज़ प्रिसाइसली डिफाइन कर सकते हो, या तो अगर हमने डिफाइन मोमेंटम कर दी तो आप पोजीशन नहीं डिफाइन कर सकते। सो सपोज आपने पहले देखा कि मैं मोमेंटम डिफाइन कर रहा हूँ। मोमेंटम क्या होती है आपकी किसी भी पार्टिकल के लिए, मोमेंटम क्या होती है h/λ। ठीक है, सो दैट मीन्स आपने मोमेंटम डिफाइन कर दी तो उसका लैम्डा डिफाइन कर दिया, दैट मीन्स आपने एक सिंगल वेव लेंथ ले ली। ठीक है, सिंगल वेव ले ली। ठीक है, मोमेंटम डिफाइन करने का मतलब सिंगल वेव। ठीक है, तो दैट इज़ योर प्रिसाइसली डिफाइंडिंग मोमेंटम। आपने एक वेव, सिंगल वेव ले ली। ठीक है, एक सिंगल वेव ले ली आपने, दिस इज योर सिंगल वेव। नाउ दिस सिंगल वेव इट इज़ बिन गोइंग हेयर एंड हेयर अप टू इन्फिनिटी, पूरा इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, एंड यू मे आस्क व्हाई इट इज़ नॉट लाइक दिस, इस तरीके से क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज इस तरीके से होने का मतलब कि देयर इज अ इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, तभी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो अगर सिंगल वेव होगी तो इट विल गो लाइक दिस अप टू द इन्फिनिटी, बिकॉज ऑफ interference only, destructive interference, it is going to have a flat like this. ठीक है, so that means the wave is going like this infinitely here, infinitely here. Now where will be the particle on this wave? The particle can be anywhere, the particle can be anywhere, this infinity से minus infinity particle can be anywhere on the wave. तो here you define the momentum, आपने momentum define कर दी इसकी, but now the particle की आपने you will never know the particle, where will be the particle, you have say कि particle की position will be infinite now.
with defining the wave पार्टिकल की विद डिफाइनिंग द मोमेंटम ऑफ द वेव, मोमेंटम से क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया आपने एक सिंगल वेव, ठीक है, उससे फिक्स कर दी, बट यू विल नेवर नो द पार्टिकल की पोजीशन नहीं पता कर पाओगे, बिकॉज पार्टिकल यहाँ पे वेव जो जा रही है दैट इज़ गोइंग फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, पूरी इन्फिनिटी ट्रैवल कर रही है। कहाँ पे पार्टिकल होगा आपका, सी द पार्टिकल कैन बी एनीवेयर, पार्टिकल कैन बी एनीवेयर ऑन द वेव, ठीक है। सो पोजीशन आपको नहीं पता लगी। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम पोजीशन को थोड़ा और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे मैं अगर मेरे को और इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, दैट मीन्स आपको क्या करना है कि आसपास इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है, ठीक है। पार्टिकल की पोजीशन को अगर आपने सपोज इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि इतनी पोजीशन में रिस्ट्रिक्ट है, दैट मीन्स ये सारी वेव मेरे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जानी चाहिए, ये वाली वेव का मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाना चाहिए। अगर आपको इस तरीके से अगर पार्टिकल में बताना है कि इतना बस इतने पोजीशन में मेरा पार्टिकल है, ऑब्वियसली अगर आपकी वेव इस तरीके से है तो इतनी पोजीशन में पार्टिकल है, दैट मीन्स ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, दैट मीन्स ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है आपका, दैट मीन्स आपके पास जितनी जितनी वेव बढ़ेंगी उतना आपका पार्टिकल लोकलाइज होता रहेगा, उतना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और उतना पार्टिकल लोकलाइज होता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंट वेवलेंथ की वेव को अगर सुपर इम्पोज करता रहूँ तो आई विल गेट कि मेरे पार्टिकल की वेवलेंथ, मेरे पार्टिकल की पोजीशन रिस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। सी द पोजीशन इज रिस्ट्रिक्टेड नाउ। अब मेरे पार्टिकल की अब यहाँ पे डिफरेंट वेव्स हो गई, ये वेव हो गई, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, इन सबके सुपर पोजीशन से यू विल सी अ वेव लाइक दिस, ठीक है। नाउ हेयर यू सी दिस इज अ बम्प और द वेव पैकेट लाइक दिस। नाउ इन दिस वेव पैकेट ओनली योर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पहले पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या थी आपकी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी थी। अब क्या हो गई, आपने पोजीशन रिस्ट्रिक्ट कर दी इन इसके बीच में, डेल्टा एक्स के बीच में पोजीशन रिस्ट्रिक्ट कर दी। बट यहाँ पे देखो ना, आप जितनी पोजीशन रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हो आप अपनी वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हो, दैट मीन्स आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स आपका लैम्डा पी क्या होता है आपका एच बाई मोमेंटम क्या होती है, एच बाई लैम्डा, ठीक है। तो जितनी आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है, लैम्डा बढ़ रही है, उतना आपका पी बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स आपके इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ रही है जितना आप क्लोजर टू योर पोजीशन जाते जा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल डॉट पे ले आऊँ, दैट मीन्स यू हैव नीड टू हैव इनफाइनाइट वेवलेंथ्स, ठीक है। बिल्कुल अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन निकालनी है तो यू नीड टू हैव द इनफाइनाइट वेवलेंथ, ठीक है, यू नीड टू हैव द इनफाइनाइट वेवलेंथ। सो दैट इज व्हाट द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि जितना आप रिस्ट्रिक्ट करोगे मोमेंटम को, आपकी जो आपका जो पोजीशन होगी फाइंडिंग द पार्टिकल विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। आप जितना रिस्ट्रिक्ट करोगे इसको, जितना आप इसको पास लेके जाओगे, जितना आपके वेव पैकेट छोटा करते जाओगे, उतना आपकी मोमेंटम यू नीड टू हैव मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ योर वेव्स, ठीक है। डिफरेंट वेव लेंथ की मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वेव, जितनी ये वेव्स बढ़ती जाएंगी उतना आप इसका क्लोजर, ये डेल्टा एक्स आपका कम होता जाएगा, डेल्टा एक्स कम होता जाएगा सुपरपोजिशन से, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट दैट शोज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर एट द सेम टाइम, ठीक है। तो उसका कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है हमने देखा, द कॉम्प्रोमाइज़ इज दैट इज द वेव पैकेट, ठीक है। इस तरीके से वेव पैकेट इज द कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ इट, ठीक है, कि वी हैव रिस्ट्रिक्टेड आवर पोजीशन अप टू दिस लेवल, प्लस वी हैव ऑल्सो हैव लिमिटेड सेट ऑफ वेव्स, ठीक है, ठीक है। सो ये जो होता है आपका सुपरपोजिशन ऑफ मैनी लैम्डा, तो यू विल गेट अ लोकलाइज पैकेट ऑफ योर, प्लस मोमेंटम इज, यहाँ पे क्या हो गई आपकी मोमेंटम अनसर्टेन हो गई बिकॉज आपकी मल्टीपल वेवलेंथ्स आ गई, ठीक है। Now to finding of the probability, तो crust and throw, it is directly proportional to your amplitude square, probability of the finding electron. So probability of finding electron is this, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपका जब तक उसको आप इंट्रैक्ट नहीं होगा किसी मैटर के साथ, जब तक आप उसको मेजर नहीं करोगे, तब तक इट इज़ लाइक इसकी पोजीशन विल बी अनडिफाइंड, ठीक है। रियलिटी इज़ बीन अनडिफाइंड अनटिल दैट इट इज़ गोइंग टू इंट्रैक्शन इज़ गोइंग टू अकर, ठीक है। तब तक उस मैटर की पोजीशन इज़ रियलिटी इज़ बीन अनडिफाइंड, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। Now we'll see one question onto it, and then we'll wrap it up with our difference between our classical and the quantum physics, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर के बाद हमने देख लिया कि our physics is totally divided into two way, क्लासिकल फिजिक्स जहाँ पे हम we know everything with the determinism, but हमारा जितना हम we'll go towards a micro level, तो we have to move into the probabilistic nature, ठीक है। This we will see this comparison and then we'll wrap it up. तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कैलकुलेट द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड टू द रीजन दिस मच, ठीक है। तो इतने रीजन के लिए ये आ गया, इतने रीजन में आपका डेल्टा एक्स आपने कन्फाइन कर दिया, दैट मीन्स आपका यहाँ पे डेल्टा पी विल बी डिफरेंट, ठीक है। डेल्टा पी आपका, बिकॉज आपने डेल्टा एक्स कन्फाइन कर दिया तो दैट मीन्स आपका डेल्टा पी बढ़ेगा, डेल्टा पी बढ़ेगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, हमारे को काइनेटिक एनर्जी में ही निकालनी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी।
अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन आपकी आ गई। तो दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन h over 2 pi. नाउ डेल्टा पी विल बी ग्रेटर देन h over 2 pi lambda. डेल्टा पी विल बी डेल्टा एक्स की जगह मैंने l डाल दिया, ठीक है। दैट इज द अनसर्टेनिटी आई एम हैविंग इन द पोजीशन. पी मिनिमम इज नथिंग बट दैट विल बी इक्वल टू दिस, बिकॉज इससे ज़्यादा ही ज़्यादा होगी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मिनिमम कितनी होगी, व्हेन इट इज इक्वल टू h by 2 pi l, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते p² over 2m, इसको इधर ले जाओ तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी, दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस, इसका टोटल स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी दिस. नाउ यू पुट द वैल्यूज हेयर, एल की वैल्यू आपको डालनी है, बाकी यू नो द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, पाई पता है, एच पता है, पुट द वैल्यू, आपके पास काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट. Now from here our physics has been divided, ठीक है. So now the physics has been divided into classical physics and the quantum physics. Classical physics जो it is going to deal with the microscopic objects, ठीक है, which you can see, touch, measure easily, like planets, baseball, steam engines. It assumes that the object has a definite position and velocity at all the times, ठीक है. Now quantum physics में क्या होगा, where we are going to deal with the microscopic particle. It describe the behavior of the atoms, electron, photons at this scale. Common sense जो हमारे rule of the larger world होते हैं, that completely break down, ठीक है. Now the rule of the now we go into the probability rather than into the determinism, which is a nature of our classical physics. Classical physics is a deterministic in nature. Like if you know the initial position and the velocity of the ball, and you know how many forces are acting on it, you can predict exactly after 100 years where will be the ball will be, ठीक है. So it is like a giant clockwork machine. Quantum is probabilistic. You cannot exactly know where the electron is right now itself, ठीक है, because you can only know the probability of finding the electron in a certain region, and that has been described by the mathematical function, which is what we call the wave function. Now continuity versus the quantization. Classical जो थी, that is the energy is continuous आपकी, ठीक है. You can increase the speed of the car or the heat of the soup by the tiny amount, 1.1, 1.2, 1.3. You can increase it in a smooth ramp like a continuous manner. Quantum में क्या होती है, energy is quantized. It comes in the discrete packet or the steps, or which we call the quanta. तो electron in an atom can exist in level 1 or level 2 and never in between, ठीक है. जैसे हमारा 1 और 2 में exist करेगा atom, electron इसमें या इसमें करेगा, इन इसमें जो बीच की जो states हैं, it will not going to exist in this. It is like a staircase rather than this, ठीक है. This is continuous and this is like a staircase, ठीक है. This is the quantum where the energy is quantized. इन क्लासिकल वर्ड समथिंग, क्लासिकल वर्ड में क्या होता है, या तो पार्टिकल, या तो कुछ कोई चीज़ होगी, या तो वो पार्टिकल होगी, सॉलिड पार्टिकल लाइक मार्बल, या फिर वो स्प्रेड कर रही होगी वेव की तरह. बट क्वांटम वर्ड में क्या होता है, एवरीथिंग हैज़ बोथ द प्रॉपर्टीज. जो भी होगी उसमें दोनों प्रॉपर्टीज होंगी. लाइट लाइक इट बिहेव लाइक अ वेव ऑल्सो, एंड इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज अ फोटोन, ठीक है. सेम वे इलेक्ट्रॉन आर पार्टिकल एंड इट कैन इंटरफेयर लाइक द वेव ऑल्सो, ठीक है. सो नाउ ऑब्जेक्ट in classical physics can be particle or waves, ठीक है. it can be a particle or a wave, ठीक है. दोनों मतलब या तो वो पार्टिकल होगा या वेव होगा, ठीक है. यहाँ पे क्वांटम में क्या होगा, वेव पार्टिकल डुअलिटी दोनों ही होता है, पार्टिकल के दोनों चीज़ें होती हैं उसमें. प्रेडिक्शन एग्जैक्ट होती है इसकी, डिटर्मिनिस्टिक होती है इसकी, प्रोबेबिलिस्टिक होती हैं. एनर्जी कंटिन्यूस हो गई, क्वांटम हो गई. मेजरमेंट मींस कि क्लासिकल फिजिक्स में डज नॉट चेंज विद द सिस्टम. अगर आप क्वांटम फिजिक्स में मेजर करने जाओगे, पूरे की पूरी जो मेजर कर रहे होगे स्टेट वही कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है. तो मेजरमेंट प्रॉब्लम होती है आपकी क्वांटम फिजिक्स में. मेजरमेंट करने जाओगे, इट कोलैप्स द स्टेट, जो अभी स्टेट होगी वही कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है. Here we use the simple maths and here we use the linear algebra or the Schrodinger equation, ठीक है. Now why don't we use the quantum physics in day-to-day object? The principle is the corresponding principle. We don't use the quantum physics to calculate the path of the flying bird, because the quantum effects is so tiny that it disappear at this scale, ठीक है, which is called the corresponding principle. But the quantum physics is quite important, because without this you could not have the transistor, you could not have the lasers, and you could not have the MRI machines, ठीक है. So we'll see the application of this जब हम solid state devices देखेंगे, जब when we are going to study semiconductor and all, we'll see कि how the quantum physics has been contributing to your transistors, ठीक है. So that's all with our modern physics का जो हमारा पहला चैप्टर था, that is dual nature of radiation and matter, ठीक है. इसके अंदर अब यही वाली चीज़ को लेके चलना है हमने. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वेव में जो हमारी ये वाली चीज़ थी कि आपका मैटर इज डुअल नेचर ऑफ योर मैटर मीन्स कि इट बिहेव्स लाइक अ वेव. सो दिस मैटर वेव्स की प्रॉपर्टी को ही लेके वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एटम, ठीक है. और एक्सप्लोर के दो जो हमारी ऑब्जर्वेशन हुई थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एंड
your why the atom is stable, why it is not spiraling into the nucleus. So these both explanation will be given by your matter wave. ठीक है, ये दोनों matter wave से ही दी जाएंगी. ठीक है, so that's all for today. अब नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर एटॉमिक फिजिक्स. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो विल मीट अप इन नेक्स्ट लेक्चर. ऑल राइट, थैंक यू.